Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. Today we are here with some of the MCQs related to textiles as well as apparel designing topic. These questions are very much important for your home science UGC NET exam, ICAR, JRF, SRF and ARS for home science, DSSB, PGT, TGT, as well as your UPP, SC, GIC, swing technology, fashion designing, fashion technology and dressmaking questions. The way of the question is not appropriately according to the MCQs, but it is accordingly that you can solve any kind of question if you thoroughly learn these particular questions. So mostly questions आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैं यहाँ पर आपको MCQs ना देते हुए इस तरह से इन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूँगी कि आप लोग विदाउट ऑप्शंस के भी आपके एक माइंड में सेट हो जाए पूरा कंसेप्ट. सो we also provide PDF notes for all the units related to home science, all the 10 units, whether it is food services, nutrition and dietetics, textiles, apparel designing, family resource management, child development, your interiors and housing, communication, family studies as well as extension education. Also you can avail all the video lectures also along with the practice question regularly, and if anyone has any kind of problem related to any individual unit, then also we have the options for individual units. All these things are paid and you can have all the details by contacting us, and contacting details are in the description box, so just go and check it out. And for any query you can call, you can WhatsApp, or you can send the message or the mail. So first question for today is natural fibers are called. So when I talk about the natural fibers only, I know that all the vegetables fiber, all the animal fiber as well as all the mineral fiber are my natural fibers. So in vegetable we can say cotton, in animal we can say wool and silk, and mineral हम लोगों को पता है asbestos, that is our fireproof fiber. So ये सब हमारे natural fibers है, all these are natural fibers. But basically here we know that we have two kinds of fiber, one is natural, other is man-made or we can say synthetic. So natural fibers are basically staple fibers. Staple fiber means short length fibers. Correct? Second question, manufactured fibers are called. So as I already said कि natural fibers are staple fiber, so other form of fiber is manufactured fiber, or we can say man-made fiber, synthetic fiber or regenerated fibers. So all these kind of fibers like nylon, polyester, acrylic and so on, ये सारे के सारे हमारे manufactured fibers, and these fibers are filament fibers, means long length fibers. So we get the question कि जो short fibers होते हैं वो centimeters और inches में होते हैं और ये हमारे yards और meters में मिलते हैं. नेक्स्ट, सिल्क इज़ द ओनली नेचुरल फाइबर कॉल्ड एज. सो अभी हमने बात की थी नेचुरल के अंदर एनिमल फाइबर है. क्या है ये? एनिमल फाइबर है सिल्क हमारा, ठीक है. और साथ के साथ अगर हम बात करें ये हमारा प्रोटीनोइक फाइबर है. उसके बाद हम बात करें जो ये है सिल्क इकलौता ऐसा फाइबर है, हमारे दो तरह के हमने अभी पढ़े, स्टेपल एज वेल एज फिलामेंट. So only the silk is our filament fiber in natural fibers. तो silk जो है सारे natural fibers में से इकलौता ऐसा filament fiber है, means long length fiber है. Next question, light is reflected through luster from the. So जो light है वो किसकी reflection से luster produce करती है. luster मतलब your shine, your चमक.
सो हमें पता है जब भी चमक कब होती है, जब सरफेस ऑफ द फैब्रिक के साथ कोई भी काम किया जाता है. सो दैट मीन्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू लस्टर फ्रॉम द फैब्रिक सरफेस. हमारे जो कपड़ा होता है उसकी जो ऊपर की सतह होती है, जो उसका सरफेस होता है, उससे ही हमारा जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वी कैन से सैटिन, योर सिल्क, ये सब हमारे क्या करते हैं, लस्टर प्रोड्यूस करते हैं. कॉटन इज सो कॉटन हमारा कैसा है, यहाँ पर हम लिखते हैं इट इज़ अ नेचुरल फाइबर, इट इज सेल्यूलोजिक फाइबर, इट इज सीड फाइबर, क्योंकि सीड से बनता है ना. इट इज अ स्टेपल फाइबर. सो इफ I know according to the cotton itself that these all are related to cotton. So जब भी अगर कोई 4 options दिए होंगे then it is very much easy for me to give the answer. So here it is a seed fiber, and along with seed I know it is a natural fiber. Also it is a vegetable fiber. Okay, and vegetables में से ये कहाँ से निकलता है, seed में से निकलता है. Correct? The word linen comes from the Latin name. So जो हमारा लिनन है वो कौन से लेटिन नेम से यहाँ पर हमारा आया हुआ है. सो फर्स्टली जो हमारा ये लिनन है दैट इज़ फ्रॉम फ्लैक्स. ये हमारा जो फ्लैक्स फाइबर है फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. ये भी हमारा क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर. Along with, we have 2 conditions for it. If I talk about just short flax fiber, it is known as tow. And if I talk about long combed and better quality and better in quality, regarding to my linen only, then it is known as line. So that means जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उसको टो बोला जाता है, जो बेटर क्वालिटी के फाइबर होते हैं उसको लाइन बोला जाता है. लिनन इज अभी हमने यहाँ पर पढ़ा लिनन क्या है, एक तरह का. सो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको कॉटन एक सीड फाइबर है, इसी तरीके से लिनन हमारा क्या है मैं आपको बता देना चाहती हूँ. इट इज़ अ बास्ट फाइबर ऑल्सो. और कौन कौन से होते हैं हमारे बास्ट फाइबर, वी कैन से फ्लैक्स, रैमिंग, हेम्प, जूट, नेफ, एज वेल एज हिबिस्कस. सो ये सारे के सारे हमारे क्या है, आर बास्ट फाइबर्स. और यहाँ अभी हमने पढ़ा था द फ्लैक्स एंड लिनन आर ऑलमोस्ट सेम, सो दैट मीन्स इट इज एन बास्ट फाइबर. Silk is already we know silk is a natural fiber, silk is animal fiber, silk is proteinic fiber, silk is filament fiber. So here the question is silk is so it is a protein fiber. ये हमारी प्रोटीन से मिलती है. एंड अदर सिल्क से अलग हमारा प्रोटीन फाइबर कौन सा है नेचुरल में, वूल, जो हमारा शिप से मिलता है वो भी हमारा क्या होता है, प्रोटीनिक फाइबर होता है. सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सो सिल्क किसके द्वारा बनते हैं, फर्स्टली द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स. सो जो कल्टीवेशन है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेरीकल्चर. कौन कल्टीवेट करता है, कोकून्स अपने अंदर से सिल्क को निकालते हैं. सिल्क इज़ अ फिलामेंट फाइबर, ओनली फिलामेंट फाइबर, एक्चुअली ओनली नेचुरल फिलामेंट फाइबर. ओके. रेयॉन इज मेड ऑफ, सो बेसिकली रेयॉन क्या है, सबसे पहली बात तो रेयॉन इज फर्स्ट रीजनरेटेड, इट इज फर्स्ट रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर. मीन्स कॉटन से हमारा जो रेयॉन है वो हमारा मिलता है. जैसे कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, ऐसे ही कॉटन से जनरेट हुआ, सेल्यूलोज से जनरेट हुआ बेसिकली सेल्यूलोजिक फाइबर है हमारा रेयॉन. ये हमारी कॉटन की कैटेगरी के अंदर हम इसको लेके चलते हैं, बट इट इज़ रीजनरेटेड फाइबर. नेक्स्ट इज
Rayon was first used commercially in. So if we talk about it is commercially produced in 1911. So 1911 कहाँ पर हुआ था, इसकी प्रोडक्शन कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स में, करेक्ट. सो सबसे पहला हमारा कॉटन कहाँ पर, रेयॉन कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था. एंड साथ के साथ ये क्या था, फर्स्ट वॉज द फाइबर वॉज सोल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क. यू नो रेयॉन को, ये आपका क्वेश्चन आएगा, रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया भी हुआ है. आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर के नाम से जानते हैं इसको. और इसको कमर्शियली अगर हम बात करते हैं, इसको वो तो हमारा 1911 के अंदर किया था, लेकिन इसका रेयॉन नाम हमारा कब अडॉप्ट हुआ अगर हम बात करते हैं? पहले इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से ही जानते थे. इन 1924 इसको हम किस नेम से जानने लगे? रेयॉन नेम से. रेयॉन, नायलॉन वॉज द फर्स्ट. सो नायलॉन क्या है? सबसे पहला हमें पता है, ये एक तो पहली बात फिलामेंट फाइबर है. इट इज़ फिलामेंट फाइबर. ऑल्सो इट इज़ synthetic fiber, so we can say it is synthetic fiber and it is first developed in United States. ये सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डेवलप किया गया था. नायलॉन इज मेड ऑफ पॉलीमर्स नोन एज. सो नायलॉन हमारा किससे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीअमाइड्स. दैट मीन्स इट इज़ मेड फ्रॉम वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस से ये हमारा बना हुआ है. और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइड्स बोलते हैं. ऑल्सो वी हैव टू अदर, दैट इज नायलॉन 66 एंड नायलॉन 6. सो दोनों के ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट फ्रॉम विच पॉलीमर्स दे आर मेड. सो नायलॉन 666 मेड विद हेक्सा मिथाइलिन diamine and adipic acid. So just remember all these things. And also these all fibers keep individual videos हमने already given है, आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं. कैप्रोलैक्टम. सो नायलॉन 6 का पॉलीमर क्या है? हमारा कैप्रोलैक्टम है. नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब. क्या एब्जॉर्ब नहीं करता हमारा? इसकी क्या होती है? लो वाटर एब्जॉर्बेंसी होती है. लो एब्जॉर्बेंसी होती है ऑफ वाटर. ठीक है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है. हाइड्रोफोबिक होता है, करेक्ट. DuPont introduced its Dacron brand of polyester in. So basically it is in 1951 and it is first हमारा जो हमारा फर्स्ट, यहाँ हम पोलेस्टर की बात कर रहे हैं. सो जो पोलेस्टर फाइबर था उसको हम किस नाम से जानते थे? दैट इज टेराइलिन एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. ओके. And also it is outstanding wet and dry resiliency of polyester and its excellent dimensional stability after heat setting made it an instant favorite. कि इसके अंदर बहुत अच्छी क्या थी? wet and dry resiliency, also dimensional stability, श्रिंकेज नहीं होती इसके अंदर. तो ये हमारा बाहर के लिए कोई भी जो फर्नीचर फर्निशिंग्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा रहता है. पॉलिएस्टर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. सो बेसिकली ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है? सिंथेटिक फाइबर है फर्स्टली. साथ के साथ इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क हॉर्स फाइबर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्क हॉर्स फाइबर फॉर इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ये एक्सट्रीमली वर्सेटाइल है. इट इज़ एक्सट्रीमली वर्सेटाइल. और इसकी जो स्टेपल फॉर्म है उसको हम किसी के साथ भी ब्लेंड करके दूसरा फाइबर बना सकते हैं. पॉलिएस्टर यूज्ड इन क्लोथिंग इज एन
इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ टफ फैब्रिक। वाई? बिकॉज ये हमारा, इसके अंदर भी वाटर एब्जॉर्बेंसी कम होती है, डाई भी नहीं इजीली होता। और जैसे हम बाहर, अगर आपको बोले कि बाहर के एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको कोई फैब्रिक चाहिए फॉर आउटसाइड एनवायरनमेंट की सोफ़ा कवर्स उनके लिए, देन इट इज़ नोन एज टफ फाइबर, टफ फैब्रिक एज वेल एज पोलिस्टर। एक्राइलिक इज एन, एक्राइलिक हमारा क्या है? सो जैसा हमें पता है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल फाइबर फर्स्टली, एंड किससे बनता है ये? एक्राइलोनाइट्राइल। ओके, एक्राइलोनाइट्राइल क्या है? एक सब्सटेंस है जिससे हमारा क्या बनता है? एक्राइलिक फाइबर बनता है। एक्राइलिक इज़ यूज्ड एज अ, इसको हम किसके तौर पे यूज़ करते हैं? इसके हम फर के तौर पे, वार्मनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड हमें पता है, अगर हम अपने नेचुरल फाइबर में बात करें, अभी तो हमें ये पता चल गया कि एक्राइलिक यहाँ पर क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। अगर हम नेचुरल की बात यहाँ पर करते हैं तो वो किसका सब्सटीट्यूट है? एज एन वूल सब्सटीट्यूट। सो इसके अंदर कैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं? वूल लाइक करेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं ये? वार्मनेस। Last question for today is acrylic became commercially available in, so it is basically available in 1950 and it is first made in 1893. Clear? So ये हमारा 20 questions आज के हो गए हैं and these all are so much important questions. So hopefully you like the video, you like the questions. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Take care, have a nice time, have a nice day.